شکریہ آپ نے موقع دیا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے پہلے آپ نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب چونکہ نہیں آیا تو میں آپ کو جواب اس کا دے دیتا ہوں کہ آپ نے کہی ڈبل ٹیکسیشن والی بات آپ کر رہی تھیں. تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا قانون ہے اور زکوٰۃ پے کرنے کے اصول ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جتنی دینداری ہے آپ کی طرف سے وہ جو واجب پر جائز دینداری ہے وہ جب ہو جائے اس کے بعد جو بچتا ہے اس کے اوپر وہ پھر آپ کی دولت بنتی ہے اور اس سرمایہ کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. تو زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ ٹیکسیشن بھی دے چکے ہوں گے چونکہ وہ آپ کی واجب دینداری ہے. اس کے بعد جو بچتا ہے وہ ویلتھ بنتی ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ پے کرے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ جو زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا ہے اور اس طرح کی اور دوسری دیگر تنظیمیں ہیں وہ ملک کے قانون کے تحت رجسٹرڈ ہیں اور انکم ٹیکس ایکٹ میں بھی رجسٹرڈ ہیں اور جو زکوٰۃ ہمیں پے کرتے ہیں بائی دی وے ہمارے قریب 95% لوگ جو ہیں آن لائن سب پیمنٹ آتا ہے. تو اس میں وہ جو لوگ وہ پے کرتے ہیں ان کو 80G کا ریلیف ملتا ہے. سیکشن 80G جو انکم ٹیکس ایکٹ میں ہے چونکہ اس میں زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا رجسٹرڈ ہے تو اس وجہ سے ان کو پے کرنے کا لہذا ڈبل والی تو کہیں بات ہی نہیں تھی بلکہ شاید زیادہ فائدے میں رہتے ہیں ٹیکس بھی پے کرنے کے بعد پھر زکوٰۃ دینے والے لوگ. تو ایک تو بات یہ بھی. دوسری بات آپ فرما رہی تھیں تو اس میں یہ تو ظاہر ہے ہمارا قریب 26واں سال چل رہا ہے کام کو. قریب 25 طرح کے ادارے ہیں. تو ادارہ سازی کے ذریعے محروم لوگوں کو بااختیار بنانا جو ہے یہ زکوٰۃ کی طاقت کا اصل استعمال ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک روحانی منشور ہے. ظاہر ہے وہ اسلام کے جو 5 ستون ہیں اس میں سے ایک ہے تو وہ ایک روحانی منشور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ملک اور دنیا میں سماجی تعمیر کو فروغ دیتا ہے. اگر آپ اس کو غور کریں گے کیونکہ ادارہ سازی کے ذریعے ہو رہا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اصل پیغام کو سمجھ لیں. اصل پیغام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وہ ایکچولی اللہ کا نظام ایسا بنایا ہے اس نے بڑا خوبصورت نظام ہے کہ سماجی اقتصادی اور روحانی تینوں پہلوؤں کا ایک تانا بانا کر کے اور جہاں بھی روح اور جسم کے لیے کوئی غذائیت کوئی نیوٹریشن دکھ رہا ہو تو اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا اور اس کو انعام اور سزا سے جوڑ دیا. اور جو رہنما اصول بنایا شروع میں ہی بتا دیا رہنما اصول ڈائریکٹو پرنسپل اسلام نے وہ ہے کہ سماج میں دولت کی گردش ہوتی رہنی چاہیے. یہ ایک جنرل انسٹرکشن مینڈیٹ دے دیا. اور آپ کو جان کے اور یاد کر کے خوشی ہوگی کہ بعد میں یہ آئین ہند میں بھی شامل ہو گیا. یہ تو رہنما اصول اسلام کا تو 1400 سال پہلے آیا تھا لیکن بہرحال 1947 میں یہ 1950 میں ہمارا کانسٹیٹیوشن میں بھی شامل ہو گیا. بڑی اچھی بات ہے. تو اب یہ جو جنرل ایک رہنما اصول ہے اس کی جو انسٹرومنٹیلٹیز ہیں اس کے آلے جات ہیں اس میں ہے زکوٰۃ صدقات قلیل الافوا فطرہ قربانی صوم کفارہ وغیرہ. ان سب کے ذریعے وہ یہ سب انسٹرومنٹیلٹیز ہیں. بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اس نے فرما دیا کہ ہم نے تم کو اس وجہ پیدا کیا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے کون جو ہم نے تمہیں ذرائع و وسائل دی ہیں اس کا استعمال کر کے دوسرے انسان کی زندگی بہتر بنانے میں کون زیادہ بہتر طریقے سے آگے آ رہا ہے. وہ بڑا مقصد ہو گیا. اور سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے گردش دولت کی وہ ایک دوسرا مقصد بڑا ہو گیا. اس کے تحت اس زکوٰۃ کو اگر ہم سمجھ لیں اچھی طرح سے تو پھر تیسری چیز یہ کہ شروع میں ہی جو آیت ہوئی جب زکوٰۃ کا پہلی بار ذکر آیا تو وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی لوگ ان کے ساتھ غزوے میں نہیں گئے تھے اور ان کو بعد میں بڑی شرمندگی بھی تو انہوں نے اپنے کو اس میں کمرے میں باندھ لیا تھا اور کہا تھا ہم اس وقت سب کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے ہمیں کھولتے نہیں. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو کھول دیا تو وہ دولت مند لوگ تھے. انہوں نے کافی دولت وغیرہ ان کو پیش کی مگر اس وقت تک آیت نہیں اتری. تب آیت اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دے رہے ہیں تو ان کو لے لو اور اسی طرح سے خرچ کرو. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ان سے کہو فلاں فلاں مد میں دے دیں تو ان سے لے لو اور اسی طرح سے خرچ کرو. یہاں سے نظام شروع سے ہی نظام قائم ہو گیا. اور نظام سے ایک بہت بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی
इसकी सीक्रेसी मेंटेन रहे तो अच्छा है। तो वो एक दाहिना हाथ दे बाएं हाथ को नहीं पता चले, तो वो के जरिए जो है बात, तो निज़ाम में उसके अंदर इतने फायदे हैं, हर चीज निज़ाम, तो इस वजह से हमें इसको टोटलिटी में देखना चाहिए। जिस तरह से खेल का मैदान होता है, उसके अंदर लाइनें खींची हुई हैं, गोले बने हुए हैं, रूल्स हैं वगैरह, उसी तरह से जफर साहब जिस तरह आप इदारों की बात करें कि इदारों को दिया जाए और फिर तकसीम हो जाए, लेकिन कई बार ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठता है। कई बार ये कहा जाता है कि ज़कात देते हैं तो हम किसी को मालिक बनाते हैं। अगर हम किसी फाउंडेशन, किसी इदारे को दे रहे हैं तो डायरेक्ट मालिक नहीं बनाया जा रहा, तो क्या ये तरीका सही है? जी, आपने बहुत अच्छा किया, ये सवाल पूछ लिया। मैं आपको ये अर्ज करूं कि जो इस्लाम की शरीयत जो है, उसके जो सोर्सेज हैं, उसका जो मंबा, सबसे पहले कुरान है, फिर हदीस है, फिर इजमा, फिर कयास। तो कुरान और हदीस में अगर जो बात बिल्कुल पूरी तरह से साफ ना हो तो इजमा जो है, वो जो उलमाए किराम हैं, वो सिर्फ एक मुल्क के या एक शहर या एक मोहल्ले के नहीं, पूरी दुनिया के जो उलमाए किराम हैं, काबिल तरीन लोग हैं, वो अपना सर जोड़ करके तय करें। तो एक तो मक्का मुअज़्ज़मा में राब्ता आलम इस्लामी है, वही बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा है इंटरनेशनल वर्ल्ड ज़कात फोरम, जिसकी इंडोनेशिया में वो है हेडक्वार्टर। उसमें सारी दुनिया के सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं जुड़े, बल्कि हमारे मुल्क जैसे जहाँ पर बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, हालांकि मुस्लिम मुल्क नहीं है, वो सब भी जुड़े हुए इसके अंदर। और वहाँ जो उलमाए किराम और सब डिस्कशन करके तय करते हैं, उसके हिसाब से यही है जो आप फरमा रही हैं। उसमें यह है कि तंजीम को के जरिए ही सब खर्च होने चाहिए, और दुनिया पूरे मुस्लिम माशरा जो है वही ज़कात देता है। तो पूरी दुनिया का जो मुस्लिम माशरा है, उसकी बहुत बड़ी कसीर जो मक़दार है, यानी कि 80-90% वो सब तंजीम के जरिए ही कलेक्ट होती है, और तंजीम के जरिए ही उसका इस्तेमाल भी होता है, और यही रूह भी है और यही इजमा भी है। तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छा किया कि ये सवाल पूछ लिया। इसमें बिल्कुल साफ बात होनी चाहिए, और इसमें जाहिर है अल्लाह की खुशनुदी ही मकसद है। और जो अभी मौलाना फरमा रहे थे, वो तो जो लोग जो तंजीमें ये काम कर रही हैं, उनकी अपनी पूरी वेबसाइट है, और वेबसाइट के ऊपर पूरी तफसील अकाउंट्स की मेंटेन रहती है। और उसके अलावा भी जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में जो है उसके मेंबर्स हैं, और ये सब लोग, ये एक जॉइंट एफर्ट होती है, और पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़े हुए रहते हैं। और उसमें ये भी रहता है कि जब जिसको और जो सवाल पूछना हो पूछ लो, जितना और देखना हो आगे देख लो। ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, खाली ऑडिटर ही नहीं करता, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं, बल्कि वो गवर्नमेंट में भी सबमिट होती है, वहाँ भी ऑडिट, उसका इंस्पेक्शन होता है, और उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद हर साल फैसले होते हैं। 25 साल से यही काम चल रहा है। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि दीनी और दुनियावी एतबार से जितनी ज्यादा एहतियात की जरूरत है और जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, उससे कुछ ज्यादा ही है। अल्लाह का बड़ा करम है। बेशक। और तो ये चीजें जाता है कि इसी तरह से मदद की जानी चाहिए। बहरहाल इसी पर चर्चा करेंगे तफसील से, और कुछ सवाल है जिनके जवाब तलाशेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, देखिए ये मिसकंसेप्शन है, और मुज़फ्फर साहब ने बहुत अच्छी तरह इसको कहा कि हम जो गवर्नमेंट के जो हमारी तरफ ड्यूटीज हैं, जो टैक्सेस हैं, वो हम पे करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस बचता है, और रिस्क के ताल्लुक से जो आप कह रहे हैं, रिस्क तो हमको कोई बेईमानी से नहीं कमाना है, हलाल रिस्क के ऊपर ज़कात है। अच्छा, जफर साहब जी, आजकल का जो ज़माना है वो देखिए इंटरनेट का है, वाईफाई का है। और मैं यहाँ ये भी अर्ज करता चलूँ कि जो कुरान की पहली वही है, इसमें उसकी चौथी लाइन में अल्लाह ताला ने कलम का जिक्र किया है। तो मैं अक्सर अपने जो ऑडियंस है उनसे पूछता हूँ कि भाई कलम आप ऐसे क्या समझते हैं। खासतौर से बच्चे जो है फाउंटेन पेन, बॉल पेन वगैरह दिखाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई 1400 साल पहले फाउंटेन पेन और बॉल पेन तो था नहीं, तो कलम काहे को कहा अल्लाह ने। बहरहाल तो कलम हर वो आला है जिसके जरिए कोई इत्तला एक जगह से दूसरी जगह, और या एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाई जा सके। तो 21वीं सदी का जो कलम है वो इंटरनेट है, वो आईपैड है। हमारी आपकी जो बात इस वक्त जूम पे हो रही है
वो भी 21वीं सदी का कलम है वगैरह वगैरह। तो चूंकि इतने मॉडर्नाइजेशन हो गया और इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई और अल्लाह ताला जो है वो उसमें आयतुल कुर्सी में भी उन्होंने कहा है कि तुम्हें इल्म किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे उतना ही मिलेगा जितना कि हम चाहें। तो अल्लाह वही साइंस कहलाती है जो हम जान पाते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका पूरा इस्तेफादा करना ये हमारा फर्ज है। तो उसका इस्तेफादा करके जो ज़कात फाउंडेशन है और इस तरह से और जो दूसरी तंजीमें हैं वो मैंने आपको अभी भी अर्ज किया था कि एक तो ये कि ज़कात ऑनलाइन आती है मोर देन 95%, और दूसरी जो जाहिर है तो उसमें अपने आप अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। जो ऑनलाइन आ रही है उसका जो फॉर्म है, अभी जो साहब फरमा रहे थे कि साहब उनको बताया जाए कि आपने जो ज़कात दी थी काहे में खशवा, यहाँ उसका उल्टा है। यहाँ जो देने वाला है वो बताता है, उसको मद दिए हुए हैं कि ये देखिए मद है, तो सब ज़कात के मद। तो और वो ये बताता है कि इस मद में फला प्रोजेक्ट के ऊपर आप हमारा ये करेंगे, खर्च करेंगे, तो वो उसी हिसाब से खर्च भी किया जाता है और उसी जाहिर है उसको फिर पूरा सब हिसाब किताब बताया भी जाता है। तो जो असल मकसद है जो बड़ी हम इसमें होता ही है कि रमज़ान आता है तो हम ज़कात की बात करने लगते हैं और हमारे कुछ गिवन्स हैं हम उसी में सर्कुलेट करते रहते हैं। लेकिन ज़कात की जो बड़ी तस्वीर है उसको बहुत समझना ज़रूरी है। बड़ी तस्वीर क्या है कि दौलत की वजह से अल्लाह ताला फरमाए रूह पर बेफ़ायदा ख्वाहिशों का गलबा हो जाता है। तो हमें कोशिश करके रूह को दौलत से छुटकारा दिलाना ताकि बेफ़ायदा ख्वाहिशें जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएं। तो ज़कात की ये बड़ी तस्वीर है कि अभी मैंने आपको ये भी अर्ज़ किया था कि जो शायद आज नहीं किया कि जो हर जुमे को खुतबा होता है अरबी वाला, वो जो ख़त्म होता है वो 16.90 कुरान करीम की जो आयत है वो उसके ऊपर खर्च होता है और उसमें अल्लाह ताला ने अदल और एहसान कर दिया। अब उसको मैं ज़कात से जोड़ के अभी आपको बता रहा हूँ, उसमें अर्ज़ कर रहा हूँ। वो ये फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि अगर तुम अदल पे कायम रहो तो ठीक है, तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अदल से उठ करके अगर तुम अपने को ऊपर हायर ऑर्बिट में ले जाओ, जो आप वहाँ अपने को एहसान वाले में ले जाओ, तो तुम हमारे बहुत पसंदीदा बंदे बन जाओगे। तो ये जो 2.5% ज़कात है या जो बुनियादी सुतून हैं, ये हज करना और ये रमज़ान के रोज़े रखना या 2.5% ज़कात देना, ये चीज़ें जो है ना ये अदल का मैनिफेस्टेशन है। ये अल्लाह ताला ने कहा कि देखो यूं करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो 2.5% जो ज़कात का उन्होंने बता दिया इस्तेमाल, इससे ये सबक लेना है कि बाकी जो 97.5% मेरे पास बच रहा है उसका इस्तेमाल मैं कितनी अच्छी तरह से करूँ कि मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाऊँ, अपने को अदल से उठा के एहसान के दायरे में ले जाऊँ। ये चीज़ बड़ा समझना बड़ा ज़रूरी है। हम ज़कात फाउंडेशन में ये भी काम करते हैं, लोगों तक जो है अल्लाह ताला को असल पैगाम है वो पहुंचाते हैं। सईद ज़फ़र साहब से भी, सईद ज़फ़र साहब जी क्या फरमाइए, लास्ट पैगाम क्या देना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि ज़कात के हवाले से हमने तफसीली चर्चा की, सही जो तस्दीक है वो भी करें और लोगों से बातचीत करें, राब्ता करें और मदद पहुंचाएं, लेकिन मदद ऐसी ना हो कि दिखावा लगे। देखिए ऐसा है कि हम जो इस वक्त मुल्क दुनिया में हालात हैं तो उसके हिसाब से जो हम हकीकत ये है कि हम अपनी आगे आने वाली नस्लों का जो इस्तकबाल कर रहे हैं वो बड़े चैलेंजिंग हालात में कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी दिक्कतों को पहचानें और जहन में उनका तसव्वुर करके और उन्हें पहले से ही उसका इलाज और उसको रोकने की रोकथाम के लिए कोशिश करें। तो उसके लिए ज़कात का इस्तेमाल करना यानी कि मिली बेचैनी और बेकरारी उसकी मुनासिब तशख़ीस करके और ऐसी इदारा साजी कर रहे हैं, ऐसा बंदोबस्त करें जिसके ज़रिए हम चश्मे के बहाव को तब्दील करें। ये हम ज़कात के ज़रिए और इस्लाम के जो दूसरे स्तून हैं उनके ज़रिए प्रॉपर उनको समझ करके उसको प्रॉपर इस्तेमाल करना जो है, इसके लिए हमें बहुत यानी कि हमारे पास पूरा मवाद मौजूद है। हमारे पास 1400 साल से सारी चीज़ें हैं मौजूद। जुमे का खुतबा है, अब जुमे के खुतबे में जो है
उसको हम और एनरिच कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जाहिर है तो जो फराइज हैं उन्हें अगर तो सही इस तरीके तरह से अंजाम दिया जाए तो माशरे को और बेहतर जगह बनाया जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। तो ज़कात से मुसलमानों पर क्या बोझ बढ़ता है, क्या 2 बार टैक्स अदा करते हैं, उम्मीद करते हैं इस तरह के वसवसे, इस तरह के तमाम सवाल जो आपके जहन में थे उनके जवाब आपको इस तहस के बाद मिले होंगे। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाज़त, आदाब।